अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम तफ्तीशी के साथ मैं हूं सलमान कुरैशी। नाजरीन, सियालकोट के इलाका थाना किला कालरवाला की हदूद में 22 साला नौजवान का कत्ल हो जाता है। कत्ल का मुकदमा डकैती, मजामत और कत्ल की दफात के तहत दर्ज किया जाता है। पुलिस जब तफ्तीश का आगाज़ करती है तो कातिल कोई और नहीं बल्कि उसका ही बचपन का दोस्त निकलता है। पुलिस ने कैसे मुलजिम गिरफ्तार किया और कितने मुलजिमान फरार हैं, असल वक़ुआ हुआ क्यों और इसके पीछे हकाइक हैं क्या, ये बताएंगे आज के प्रोग्राम तफ्तीशी में। नाजरीन, सियालकोट के इलाका थाना किला कालरवाला की हदूद में हुई कत्ल की एक खौफनाक वारदात, जिसमें 22 साला नौजवान को बेदर्दी के साथ फायरिंग करके मौत के घाट उतार दिया गया। वो गमज़दा वालिदैन हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं की ज़ुबानी जान लेते हैं कि उनके चश्मो चिराग को किस तरह बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया, किसने कत्ल किया और इसके पीछे क्या वजूहात हैं। भाई, बड़ा अफसोसनाक वाक़या है, की हो गया, किमें हो गया? सर हवेली 'ਚ बैठे सी ਤੇ ਫਰਹਾਨ ਆਇਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਬੋਤਲ ਪੀ ਰਹੇ ਸੀ। कौन है फरहान? ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਭੇਜਿਆ ਕਾਤਲੀ, ਜਿਹਨੇ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। अच्छा, ਹਾਂਜੀ, ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਇਹ ਚੱਲ ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਲੈਣ ਜਾਣਾ ਕਿਲੇ ਕਾਲਰ ਵਾਲੇ ਤੋਂ। ਦੋਸਤ ਹੈਗਾ ਸੀ ਇਹਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਦੋਸਤ ਹਨ। ਅਜ਼ਾਨ ਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਕਰੀਬੀ ਦੋਸਤ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮਾਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹ ਕੰਮ ਐਸਾ ਕਰੇਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਕਿਲੇ ਜਾਣਾ, ਭਾਈ ਨੂੰ ਲੈਣ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ 15-20 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆ 20 ਮਿੰਟ 25 ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ। ਫੋਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਖੈਰ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਇਹਨੇ ਫਰਹਾਨ ਨੇ ਫੋਨ ਕਰਤਾ? ਹਾਂਜੀ, ਫਰਹਾਨ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਜਾਂਦੇ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਪਿਆ ਤੋਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘੱਟੇ 'ਚ। ਐਵੇਂ ਮਾੜੇ ਸਾਂਸ ਚੱਲਦੇ ਹਨ ਪਏ। ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਉਹ ਸਾਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ ਹਲਕੇ? ਹਾਂਜੀ। ਗੱਲ-ਗੁਲ ਕੀਤੀ ਕੋਈ ਉਹਨੇ? ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅੱਛਾ। ਸਿਰਫ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਛਾਤੀ ਦੇ ਹੱਥ ਮਾਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਫਾ ਬੋਲ ਤੇ ਸਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੱਸ ਤੇ ਸਹੀ। ਕਹਿ ਰਹੇ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੇਰੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਕਰਕੇ ਬਾਬੂ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਚੁੰਮਿਆ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਹੁੰਗਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰਨ ਡਿਆ। ਥੋੜੀ ਕੁ ਦੇਰ ਬਾਅਦ 2-4 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਦਮ ਦੇ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਨਾਰਵਾਲ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਗਿਆ, ਜਾ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਾਈਆਂ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਫਰਹਾਨ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀ? ਫਰਹਾਨ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਫਰਹਾਨ? ਫਰਹਾਨ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵਾਰਦਾਤ ਉੱਥੇ ਹੋਣ ਡਈ ਸੀ। ਉਹ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਉਹ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋ ਗਈ, ਹੋਣ ਡਈ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਲੁੱਟ ਕੇ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ। ਪਿੱਛੇ ਭੱਜ ਪਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਉੱਥੇ ਗਏ ਆ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ, ਕੋਈ ਵਾਰਦਾਤ ਵਾਲੀ ਵੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਤਿਗਰ ਵੀ, ਹੁਣ ਤਿਗਰ ਵੀ ਮੈਂ ਪਤਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੱਸ ਪਾਈ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਆਖੇ ਨਹੀਂ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਚਲੋ ਇਹ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਦੋ ਹੀ ਆ। ਫਰਹਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਣ ਡਈ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਕਤਲ ਕਰਤਾ? ਸਾਡੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਇਹ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ। ਉੱਥੇ ਗਏ ਆ, ਪਿੱਛੇ ਗਏ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਐਂਜੀ ਨੇ ਹੱਥ ਪਾਇਆ, ਦੂਸਰੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਫਾਇਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਡਾਕੂ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਡਾਕੂਆਂ ਦੇ ਮਗਰ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਇਰ ਮਾਰਿਆ। ਬੱਚਾ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਬਾਬੂ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਫੜਨ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੋਂ ਫਾਇਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਦੋ ਹੀ ਆ। ਅੱਛਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਕੈਮਰਾ ਚੱਲਿਆ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਅਸਾਂ ਦਫਨ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਦਫਨ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਦੋਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਮਰੇ 'ਚ 3 ਜਣੇ ਆਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਿੱਛੋਂ ਲੱਥਾ ਉੱਤੋਂ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ? ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਫਰਹਾਨ। ਅੱਛਾ। ਉਹਦਾ ਭਾਈ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਥੱਲੇ ਜਦੋਂ ਡਿੱਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਠਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ 2-3 ਉਹਨੇ ਉਹ ਪਿੱਛੋਂ ਬਾਬੂ ਖੋਲੇ ਨੇ, ਪਿੱਛੇ ਬਾਹਾਂ ਬੱਧੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਹੀ ਆਪ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਦੇ ਬਾਬੂ ਖੋਲੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਥੋੜਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ, 1 ਸੈਂਕੜ ਕੁੱਤੀ ਕਰ, ਤਕਰੀਬਨ 2-3 ਸੈਂਕੜ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਉਹਨੂੰ ਠੁੱਡੇ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇੰਜ ਭਾਣ ਡਏ ਨੇ ਬੈਠਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਜਣੇ ਠੁੱਡੇ ਮਾਰੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੁੱਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਹੋਏ ਆ ਰਹੇ ਆ? ਫੁਟੇਜ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਦਾ ਹੈ ਭਾਈ ਕੋਲ। ਹੈਗੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ। ਚਲੋ ਸਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਰ ਰਹੇ ਆ? ਹਾਂਜੀ। ਕੌਣ? ਇਹ ਫਰਹਾਨ ਤੇ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਦੋ ਹੀ ਆ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ। ਚਲਦੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਕਿ ਰੋਕ ਕੇ ਮਾਰ ਰਹੇ? ਜਦੋਂ ਬੇਟਾ ਸਾਡਾ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਉਹ ਇਸ ਕਿਤੇ ਫਟਣ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਮਾਰਿਆ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਉੱਥੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ ਹੈਗੀ। ਉੱਥੇ ਬਲੱਡ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਕਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸਾਹਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਚੁੰਮਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਦੱਸ ਵੀ ਤੇ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਅਗਰ ਸਰ ਮਾਰੂ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਹ ਸੀ ਉਹਦੇ ਸਿਰਫ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾਇਆ ਨਾ, ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾਹ ਤਵੱਕਲ ਹੀ, ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਇੰਜ ਬਾਬੂ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਚੁੰਮਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਬੜਾ ਬੁਲਾਇਆ। ਅਤੀਕ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਗੇ ਸੀਟ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਰੋਦਾ ਰਿਹਾ। ਅਤੀਕ ਸਾਹਿਬ ਕੌਣ? ਐਸਾ ਉਹ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ? ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ।
ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਚ ਚਲੇ ਗਏ ਨਾਰਵਾਲ। ਮੇਰਾ ਤੁਸੀਂ ਪਰਚਾ ਕਰਾਇਆ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਚਾ ਹੋਇਆ ਹੈ 302 392 ਮਤਲਬ ਡਕੈਤੀ ਮਜ਼ਾਮਤ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਤਲ ਕਰਤਾ। ਜੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਇਆ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਪਰਚਾ? ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇਹ ਪਰਚਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸ਼ੈਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ, ਜੀ। ਜਾਂ ਸ਼ੱਕ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਕਿਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੀਆਂ, ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਇਹ ਲੱਗਿਆ? ਸਰ ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਕੇ। ਅੱਛਾ, ਕਿੰਨੇ? ਅਸੀਂ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ। ਅੱਛਾ, ਆਪ ਚਲੇ ਗਏ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਆਪ ਚਲੇ ਗਏ। ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਹੋ? ਉੱਥੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਤੇ ਸ਼ੈਲਰ ਦਾ ਸੀ ਉਹ। ਅੱਛਾ, ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਕਤਲ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ? 5 ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ 4-5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ। 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਿੱਥੇ ਮੁੰਡਾ ਵਕੂਆ ਹੋਇਆ, ਕਤਲ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਹੈ? ਉਹ ਸਰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਬੇਟਾ ਆਪਣਾ ਡਿੱਗਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਪਿਆ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ? ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਕਤਲ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਦੀਆਂ ਸਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ? ਹਾਂਜੀ, ਸਾਵਾਂ ਸਿਰਫ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਬਸ। ਅੱਛਾ, ਲੇਕਿਨ ਮਾਰਿਆ ਕੁੱਟਿਆ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾਇਆ ਇਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਫਟਨੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਦੋ ਉੱਥੇ ਕਮ ਸੋ ਕਮ 1 ਕਿੱਲਾ ਜਿੱਥੇ ਪਿਆ ਸੀ ਬੇਟਾ, 1 ਕਿੱਲਾ ਕੋ ਇੱਕ ਸੰਗ ਪਿੱਛੇ 2 ਹਵਾਈ ਫਾਇਰ ਛੋਲੇ ਨਿਕਲੇ ਨੇ, 2 ਫਾਇਰ ਇਹਨਾਂ ਕੱਟੇ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਉੱਥੇ? ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੈਮਰੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ, ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ। ਅੱਛਾ, ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਵੇਖਿਆ ਹਾਂਜੀ, ਕਿ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ? ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਦੋਵੇਂ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੇਟਾ ਡਿੱਗਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂ, ਉੱਥੋਂ ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉੱਥੇ? ਉੱਥੇ ਬੇਟਾ ਮੇਰਾ ਵਿੱਚੋਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਵਿਚਕਾਰੋਂ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਫਰਹਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ 2 ਮਾਸੀ 2 ਜੋ ਕੈਮਰਾ ਵੇਖਿਆ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ 3 ਹੋਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਆਹ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੀਸਰਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਹੈ? ਹਾਂ, ਤੂੰ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ 2 ਹੀ ਆ, ਅਸੀਂ 2 ਹੀ ਆ, ਤੀਸਰਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ? ਹਾਂ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਜਿੱਥੇ ਪਿੱਛੇ ਵਾਰਦਾਤ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਬਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕੋਈ ਉੱਥੋਂ ਬੈਠੇ ਨਹੀਂ। ਪਿੱਛੋਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਲਿਆਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਮਾਰਿਆ, ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਫਟਣ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ SHO ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀਡੀਓ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਦਿਖਾਈ। ਉਹਨੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਝਾੜ ਪੀੜ ਵਾਲਾ ਦਰਬਾਰ ਉੱਥੇ ਫੁੱਟਣ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਕਿਉਂ ਮਾਰਤਾ ਦੋਸਤ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ? ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ, 8-9 ਮਹੀਨੇ ਲਾਏ ਨੇ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਸੀ ਇਹ ਫਰਹਾਨ ਵਰਨ ਤੇ ਜਮਸ਼ੇਦ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆਏ ਨੇ। ਘਰੋਂ ਇਹਨੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਸਾਡਾ ਕੱਢਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਖਾਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਸ਼ੈਲਰ ਤੇ ਪੱਲੇਦਾਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਦੋਵੇਂ ਭਾਈ ਵੱਖਰੇ ਸ਼ੈਲਰ ਤੇ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੱਖਰੇ ਕਰਦਾ ਪੱਲੇਦਾਰੀ। ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਸੀ 1.5 ਪੌਣੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਜਾਣਨ ਤੇ ਪੈਸੇ ਜਾਣਨ ਤੇ ਇਹ ਜਾਣਨ ਇਸ ਘਰ ਵਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਰਿਆ। ਅਜ਼ਾਨ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾਉਂਦਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ। ਅਜ਼ਾਨ ਕਿੰਨਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ? ਮੇਰਾ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਬੇਟਾ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ? ਬੱਚੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 6 ਹਜੇ ਤੇ 5 ਬਾਕੀ ਨੇ, ਤੇ 6ਵਾਂ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, 6 ਸੀ। ਇਹ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ? ਹਾਂਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਬੇਟਾ ਮੇਰਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਅੱਛਾ, ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਅੱਛਾ ਸੀ। ਆਪਣਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਇਹਨੇ ਸੰਭਿਆ। ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਸੀ ਇਹਦੀ? 21 ਸਾਲ 'ਚ ਪਿਆ ਸੀ। 21 ਸਾਲ ਦਾ। ਤੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਬਸ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ? ਸਰ 12-14 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਲੈਣਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਚੰਦ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ। ਆਪ ਕੈਮਰਾ ਲੱਭਿਆ, ਆਪ ਮੁਲਜ਼ਮ ਫੜਿਆ, ਆਪ ਮੁਲਜ਼ਮ को तफ्तीश की है? पुलिस ने कुछ भी नहीं किया? पुलिस ने कुछ भी नहीं किया। कोई किसी किस्म की पुलिस ने कोई पुलिस ने कुछ भी नहीं किया। सही है। जे पुलिस ने किया भी तो अंदरले खाते जाके किया है। हस्पताल जाने तो पहले दम तोड़ गया, हस्पताल अपड़ गया, पहुंच गया हॉस्पिटल। अच्छा, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਤੇ DSP ਸਾਹਿਬ ਪਸਰੂਰ ਵਾਲੇ SP ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਮ ਸਾਹਿਬ ਕੌਣ? SHO ਸਾਹਿਬ। ਅੱਛਾ, ਤੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ 4 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ 2 ਮਾਰਾਂਗੇ, ਤੀਸਰੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਦਿਆਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾ ਛੁੱਟੇ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ, ਬਾਅਦ ਚੋਂ 4 ਦਿਨ ਉਹਦੇ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਨੇ, 4 ਦਿਨ ਵੇਂਦੇ ਰਹੇ, ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਪਸਰੂਰ ਇਸੇ ਨਕਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਭੇਜਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਨਕਵਾਰੀ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਪਸਰੂਰ ਵਾਲੇ ਸਾਹਿਬਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਭਲਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਆਵਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਨਾ SHO ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ ਗਿੱਛਿਆ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਪੁੱਤਰਾ ਜੇ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਜਦੋਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਬੈਲਫ ਪਵਾਇਆ। ਬੈਲਫ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਪੈ ਗਿਆ? ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਥਾਣੇ ਤੇ। ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਆਪਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਲਫ ਕਿਵੇਂ ਪੈ ਗਿਆ? ਮੁਲਜ਼ਮ ਕਿੰਨੇ ਫੜਿਆ ਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕੌਣ ਸੀ? ਮੁਜ਼ਰਮ ਫਰਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਗਿਆ ਸੀ ਸਾਡੇ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਫੜਿਆ? ਅਗਰ SHO ਤੇ SHO ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਥੋੜੀ ਕੁ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਬਿਆਨ ਲੈਣੇ ਨੇ। SHO ਨੇ ਕਿਹਾ ਫਰਹਾਨ ਕੋਲੋਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਨੀ? ਸਰ ਉਹ ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਖੁਦ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਵਾਂ। ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਉੱਥੇ ਡੱਕੋ, ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਤੇਰਾ ਬੇਟੇ ਦੇ ਮੁਜਰਮ 2 ਥਾਂ ਮਾਰਨੇ ਨੇ, ਇਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ 4 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦੇ। ਸਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਗਿਆ। ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਕਵਾਰੀ ਤੇ ਸਾਡੀ SHO ਸਾਹਿਬ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ।
ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਸਾਡੀ ਗੱਲ। ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੇ ਆ ਰੋਜ਼, 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਮਾਹ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਮੰਨਣ ਦੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ। ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ? ਇਹ ਹੈ ਬੇਗਨਾਹ ਨੇ, ਇਹ ਬੇਗਨਾਹ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਪੈਸੇ ਲਏ ਨੇ ਤੇ ਵੈਸੇ ਇਹ ਬੇਗਨਾਹ ਨੇ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਮੁਜਰਮਾਂ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਪੈਸੇ, ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਅੰਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਤੜਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਤੜਿਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਭੱਜ ਗਿਆ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਤੜਿਆ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਹੁਣ ਸਿਆਲਕੋਟ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ। ਜੇਲ੍ਹ ਕਿਵੇਂ ਭੇਜਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਜੋ ਬਿਆਨ ਬਿਊਨ ਲਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਤਲ? ਉਹ ਕਦੀ ਐਸਓਚਓ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਦੀ ਆਂਦੇ ਮੰਨ ਗਿਆ, ਕਦੀ ਆਂਦੇ ਹਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੀ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਸਭ ਕੁਝ ਇਹਦੇ ਚਾਹੀਏ, ਸਭ ਕੁਝ ਇਹਦੇ ਚਾਹੀਏ। ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਦੋਂ ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਹੋਰੇ ਚੁੱਕ ਲਏ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਆਂਦੇ ਨੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਇਹ ਸਭ ਬੇਗਨਾਹ ਹੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਬੇਗਨਾਹ ਹੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਗੁਨਾਹ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਾਕਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਬੇਗੁਨਾਹ ਸਰ ਹੋਵੇ ਉਹ ਬੰਦਾ? ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਮਾਨੀ ਕਰਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਖੁਦ। ਸਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਮਰਾ ਸਰ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਿਉਂ ਇੰਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਪੁਲਿਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ? ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਬਸ। ਉਹ ਅਸਰੋ ਰਸੂਖ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਪੁਸ਼ਤ ਬਣਾਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਉਹਦਾ ਭਾਈ ਉੱਥੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਦੇ ਉੱਥੇ ਰੀਡਰ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਗੁਜਰਾਂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤੇ ਉਹ ਸਭ ਕੁਛ ਹੀ ਉਹ ਕਰਾ ਰਿਹਾ, ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਫੋਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਬਾਸਰ ਲੋਕ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਰ ਮਾੜੇ ਆ, ਨਾ ਉਹ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ ਤੇ ਕੁਛ। ਬਾਕੀ ਉਹ ਜਮਸ਼ੂਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਤਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਭਾਗੇ ਨੇ, ਹਜੇ ਦੌੜੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਬਾਕੀ ਉਸ ਥਾਣੇ ਵੀ ਤੇ ਗਏ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਹਾਂ, ਉਸ ਦਿਨ ਬਸ ਥਾਣੇ ਗਏ ਨੇ, ਬਾਅਦ ਚ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਬਾਅਦ ਚ ਪਿੰਡ ਵੀ ਛੱਡ ਕੇ ਨੱਸ ਗਏ ਨੇ। ਪਿੰਡ ਵੀ ਛੱਡ ਕੇ? ਹਾਂਜੀ, ਪਿੰਡ ਵੀ ਛੱਡ ਕੇ ਨੱਸ ਤੇ ਗਏ। ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਹੁਣ? ਤਕਰੀਬਨ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਚੱਲੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦਿਹਾੜੀ 2 ਘਾਟੇ। ਤੇ ਕੀ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋਗੇ ਮੁਤਾਲਬਾ? ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿੱਥੋਂ ਤੀਰ ਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਸਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ, ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਾਂ ਆਪਣਾ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਖੁੱਲੀਆਂ ਕਚਹਿਰੀ ਲੱਗੀ, ਸਿਆਲਕੋਟ ਲੱਗੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਲਾਹੌਰ ਲੱਗੀ, ਤਾਂ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੱਗੀ ਅਸਾਂ ਆਪਣਾ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣਾ। ਬਾਕੀ ਸਾਨੂੰ ਹਕੂਮਤ ਸਾਡੀ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ, ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ? ਹਾਂਜੀ, ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਵਜ੍ਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਨਾ ਉਹ ਸੈਨ ਆਪਣੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ ਕਿਉਂ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਸਰ ਉਹ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਸੀ, ਬੱਚੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ? ਹਾਂਜੀ, ਬੱਚੇ ਨੇ ਪੈਸੇ 12-14 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਤਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਅੱਬੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਇਟਲੀ ਜਾਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਇਟਲੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਗੇ ਤੈਨੂੰ ਬੇਟਾ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਤੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ? ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਸਿਰਫ 50,000 ਰੁਪਈਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਬੂ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦਿਆਂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ। ਫਰਹਾਨ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ 8-7 ਜਣੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇਹ ਹੱਸਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਅੱਬੂ ਮੇਰੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਲੱਗ ਪੈਣਾ, ਉੱਠ ਕੇ ਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਜਾ ਕੇ ਹੱਸਦਾ ਹੱਸਦਾ ਤੇ ਆਂਦਾ। ਤੇ 12-14 ਲੱਖ ਉਹਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਕਮਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਬੇਟੇ? ਕੁਝ ਬਾਹਰੋਂ ਤੇ ਕੋਈ ਘਰੋਂ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ। ਬਾਹਰ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ? ਇਹ ਦੁਬਈ ਹੁੰਦਾ। ਕਦ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਆਇਆ? ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਕੋਈ 8 ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਭੇਜਤੇ? ਹਾਂਜੀ, ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ। ਘਰ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦਾ ਸੀ? ਘਰ ਸਿਰਫ 50,000 ਰੁਪਈਆ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਬੜੀ, ਉਹਨਾਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਹੀ ਉਹਦਾ ਇਕੱਠਾ ਸੀ। ਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰ? ਹਾਂਜੀ, ਦੋਸਤਾਂ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਹੀ ਹੈ। ਵਾਲਦਾ ਨੂੰ ਮਾਂ ਜੀ ਕੀ ਕਹੋਗੇ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸਭ ਕੁਝ? ਬੜਾ ਅਫਸੋਸਨਾਕ ਵਾਕਿਆ ਹੈ। ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰੋਂ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਖੜਿਆ ਏ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਠੀਕ 15 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਘਰ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਫਰਹਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਨਾ ਚੋਰਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਏ। ਅੱਛਾ। ਠੀਕ ਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਬੂ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਤੇ ਕਾਰ 'ਚ ਪਾਇਆ ਨੇ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਮਸਾਂ ਕਿ ਰਾਹ 'ਚ ਹੀ ਨੇ ਹਈਏ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਦਮ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਪੁੱਛਦੀ ਰਹੀ ਹਾਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਇਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੀ ਹੁਣੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੁਣੇ ਆ। ਮੈਂ ਰਾਤ ਸਾਰੀ ਫੋਨ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਇਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਹੀ ਕਿਹਾ। ਸੁਬਾਹ ਮੈਨੂੰ 5 ਵਜੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਇਹਦਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ 3-4 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਰਿਆ, ਕੁੱਟਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬਾਅਦੋਂ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਫੈਰ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਸੁੱਤਣ ਤੁਰ ਗਏ ਨੇ। ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਢਿੱਲੀ ਵਾਲੀ ਨਹਿਰ ਸੁੱਟਣਾ ਸੀ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਝਾੜ ਪੀੜੇ ਇੱਕ ਸੂਬਾ ਉੱਥੇ ਸੁੱਟਣਾ ਸੀ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਮਰੇ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਠੁੱਡੇ ਮਾਰੇ ਨੇ। ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਸਾਹ ਹੀ ਕੋਈ ਤੇ ਮਰਿਆ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਕੀ ਹੋਇਆ? ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਠੁੱਡੇ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਬਾਹਾਂ ਖੋਲੀਆਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਤਰਲੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਤਰਲੇ ਲਏ ਨੇ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦੇ ਹੱਥੇ। ਤੇ ਬਰਹਰ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਪਿੰਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਇਹੋ ਹੀ ਨੇ ਖਾਸ ਦੁਸ਼ਮਣ। ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਦੋਸਤ ਹੋ ਕੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਗਏ, ਕੀ ਵਜੂਹਾਤ ਹੈ ਮਾਂ ਜੀ, ਕਿਉਂ ਬਣ ਗਏ? ਭਾਈ ਬਸ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਪੈਸਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੈਣਾ ਹੋਏ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਹਨ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮੰਗਦਾ ਰਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਇਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮਾਰਨ ਦੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਅ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ। ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ। ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਘਰੋਂ ਗਿਆ ਸੀ ਬੱਚਾ? ਘਰੋਂ ਗਿਆ ਜੇ
7:30 ਵਜੇ 7:15 ਵਜੇ ਨਾਲ ਤੇ ਲੈ ਗਏ। ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਫੋਨ ਆਇਆ? ਮੈਨੂੰ ਆਇਆ ਜੇ ਕਿ 7:45 ਵਜੇ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ। 8:30 ਵਜੇ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਪਹੁੰਚੇ ਉੱਥੇ? ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਲਾ ਲਓ ਕਿ 6-7 ਮਿੰਟਾਂ ਚ ਪੜ ਗਏ ਹੋਣੇ ਨੇ ਜਾਂ 10 ਚ ਪੜ ਗਏ ਹੋਣ ਦੇ। ਉਹਦੇ ਨਰੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਾ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਜਿੱਥੇ ਫੌਤ ਹੋਇਆ ਨਾ ਉੱਥੇ 4-5 ਮਿੰਟਾਂ ਚ ਪੜ ਗਏ ਨੇ ਕੋਲ। ਤੇ ਫੌਤ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਹੋਇਆ? ਫੌਤ ਮਸਾਂ ਕਿ 8:30 ਵਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਦਮ ਮੁੱਕ ਗਏ ਹਨ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵੇਰ 5 ਵਜੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ? ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਬੱਚਾ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਈ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਹਾਲੇ ਇਹਨੂੰ ਟੀਕੇ ਟੂਕੇ ਬੋਤਲਾਂ ਬਾਤਲਾਂ ਲੱਗਣ ਡਈਆਂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਮੈਨੂੰ ਸਵੇਰ ਜਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਨਾ ਵੇਲੀ ਗੱਡੀ ਆ ਗਈ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਵਗੈਰਾ ਕਰਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਹਾਂਜੀ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਅਜ਼ਾਨ ਅਲੀ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ ਪਰ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਬਹੁਤ ਨੇਕ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਚੀਜ਼ ਕੱਢ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਦਿੰਦੇ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ। ਜਮਸ਼ੇਦ ਨੇ, ਫਰਹਾਨ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨੇ ਦੂਸਰੇ ਨੇ ਅਰਸ਼ਾਦ ਨੇ। ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਬਸ ਫਿਰ ਵੇਖ ਲਓ ਪੈਸਾ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣਾ ਹੀ ਛੱਡਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇਣੇ ਨੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੀ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਵੀ ਬੇਟੇ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੇ? ਮੇਰੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਕਾਇਆ 5 ਬੇਟੇ ਨੇ, 1 ਬੇਟੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ? ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਛੋਟੇ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਦਾ ਬੇਟਾ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਏ? ਬਾਹਰੋਂ ਇਹਨੂੰ ਹੋ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ 6-7 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਗਏ ਹਨ ਆਏ। 6-7 ਮਹੀਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਪਰ ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ 8-9 ਮਹੀਨੇ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ 50,000 ਰੁਪਇਆ ਇਹਨੇ ਕਰਾਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਜਾਨ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਖਲਾ ਜਾਨ ਇੰਜ ਕਰ ਜਾਨ ਇੰਜ ਕਰ ਜਾਨ ਨੇ ਇੰਜ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਜਾਨ ਨੇ ਤੇ ਇੰਜ ਹੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੇ ਸੱਕੇ ਭਰਾ ਨੇ ਸੱਕੇ ਅਸੀਂ ਘਰੋਂ ਵੀ ਦੁੱਧ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਵੀ ਮੂੰਹ ਪਿਆਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਤੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਮੂੰਹ ਪਿਆਰ ਕਰਕੇ ਵੀ ਬੇਟਾ ਸਾਡਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਲੀ ਗਈ? ਹਾਂਜੀ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਟੋਟਲੀ ਚਲੀ ਗਈ। ਵੀਡੀਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵੀਡੀਓ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਾਡੇ ਇਹ ਥਾਣੇ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਬਣਾਉਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੀਆਂ ਨੂੰ ਆਨੀ ਆ ਮੈਨੂੰ ਖਾੜ ਉੱਥੇ ਪਰ ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੀ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕਰੋਗੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਸਾਡਾ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡਾ ਜਵਾਨ ਬੇਟਾ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਜੀ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਇੰਝ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਜੀਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤਰ ਤੁਰ ਗਿਆ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਬਰ ਦੇਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਸਾਨੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰੇ। ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਹਾਲ ਮੁੱਕਿਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਰਦੀ ਪਈ। ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਨਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਰਦੀ ਪਈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਉਦਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਹਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹਿੱਲ ਗਿਆ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲੀਆਂ ਅੱਗੇ ਤੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਹਨ ਕੰਮ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂਦੇ ਪਿਓਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। अल्लाह पाक आसानियाँ करे ताड़े वास्ते। सियालकोट के इलाका थाना किला कालरवाला की हदूद में एक 22 साल नौजवान का कत्ल हो जाता है और उस कत्ल का मुकदमा डकैती मजामत और कत्ल के तहत दर्ज किया जाता है 392 और 302 की दफ़ा के तहत। ये ब्लाइंड मर्डर का वाक़या था। इसके बाद पुलिस उस पर तफ्तीश का आगाज़ करती है तो होमिसाइड इंचार्ज जो सर्कल पसरूर है राना शबीर वो ना सिर्फ इस ब्लाइंड मर्डर को ट्रेस करते हैं बल्कि मुल्ज़मान तक भी पहुंच जाते हैं और एक मुल्ज़िम इसमें उन्होंने गिरफ़्तार कर लिया जबकि 2 मरकज़ी मुल्ज़मान अभी तक फ़रार हैं। असल में ये कत्ल की वारदात हुई क्यों, इसके पीछे क्या वजूहात है, राना शबीर हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं की ज़ुबानी आपको सुनाते हैं। राना साहब बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। पहले तो राना साहब ये बताइएगा ये ब्लाइंड मर्डर की इतलात किस तरह से मौसूल होती हैं, तफ्तीश का आगाज़ कैसे करते हैं आप? Thank you, cordial thanks, my felicity. You have given to me time and obliged to me. Cordial thanks. ये 250/24 13/4/24 शाम को ये कॉल नहीं चली बल्कि ये हमारी गश्त गाड़ी कर रही थी। तीक सब इंस्पेक्टर थाना किला कालरवाला अपने जवानों के साथ कोट गोंदल किला कालरवाला गश्त कर रहा है उधर रोलिंग। तो किसी ने बताया कि आगे जाएं, एक बंदा कह रहा है वारदात हुई है, 2 बंदे मिले हैं वारदात हुई है। वो आगे गया तो फरहान अली और अजान अली शैलर के सामने और साथ ही बिंडरों का पंप है, लाश नीचे पड़ी हुई है और साथ फरहान अली खड़ा है, मोटरसाइकिल भी है। तो उसने कहा कि पहले 3 बंदे लुट चुके हैं वो भी इधर गए हैं बकौल फरहान अली वारदात हुई है और हमारे साथ भी वारदात हुई है, कुछ पैसे नकदी मोबाइल छीन लिया है। तो बहुत ज़्यादती हुई है। ना तो फरहान अली ने कॉल की है, ना पहले 3 लुटने वालों ने कॉल की है, ना ही मौका पर किसी मुअज़्ज़िन ने, अहले दानिश और अहले बीनिश लोगों ने इस वक़्वे की तस्दीक की।
चूंकि प्लेंटिफ नहीं मतलब अजान अली भी वहाँ पे मौके पर मौजूद था। अजान अली की डेड बॉडी थी। अच्छा, अजान अली मुर्दा हालत में पड़ा है और फरहान अली उसके साथ खड़ा होके 15 पे कॉल करता है। नहीं 15 पे कॉल की ही नहीं है। अब वहाँ पे गश्त पे पुलिस को बताता है। पुलिस आगे वैसे के आगे जाए ऐसा मामला हुआ है। ये 2-3 एकड़ उन्हें कैसे पता लगता है कि मामला हुआ है? 2 एकड़ ये पंप वालों ने कॉल की, पंप वालों ने कि ये गाड़ी आप जाएं, उधर कत्ल हुआ है बंदा। अच्छा, 2-3 एकड़, 2 फरलांग कह लें, 2-3 एकड़ कह लें, किला कालरा स्टाफ से जानब सैलर के सामने। ठीक है। वहाँ पर जब पुलिस की आपकी गाड़ी पहुंचती, अतीक सब इंस्पेक्टर पहले फर्स्ट रिस्पॉन्डर पहुंचे हैं, तो उन्होंने कहा है कि अच्छा ये बात है। अतीक सब इंस्पेक्टर तो चूंकि बंदा मर गया था, मुझे भी फ़ोन के ऊपर टेलीफोनिकली इंटीमेटेड किया गया। उम्मी साइड सर्कल पसरूर का इंचार्ज जो, तो मैंने भी फिल फौर उधर की रवानगी शुरू कर दी, उधर गया हूँ मौका पर। जब मौका पर गए हैं तो चूंकि मदई जो सगीर अहमद वल मोहम्मद शरीफ है, उसने दरखास्त दी शुरू में, तो मौका पर ही दरखास्त दे दी थाने जाकर 5-6 मिनट के बाद कि डकैती का मुकदमा दर्ज कर दिया 250/24 मोरखा 13/4/24 जुर्म 302/392 फौरी दर्ज हो गया। जब नाश लीगल फॉर्मेलिटीज के लिए उसकी सरसरी मुलाजे के बाद पोस्टमार्टम और रिक्वेस्ट PMR और फॉर्म सूरत हाल जितनी भी अमूर दस्तूरात थे, जब मैंने सरसरी मुलाजा किया तो मुझे शक हो गया कि ब्लैकनिंग है। ये तो इतनी ब्लैकनिंग है कि 1.5 इंच फायर लगा है। एक ये वक्की के साइड लेफ्ट पर नहीं है, बल्कि सामने से फायर लगा और वो भी 1.5 इंच ब्लैकनिंग है। मतलब करीब से फायर लगा, बिल्कुल ऐसे जैसे एक ही 2 फायर हुए। ब्लैकनिंग मतलब ब्लैकनिंग होता है कि अराउंड द वुंड काला निशान आ जाए, जैसे मेटालिक डस्ट आ जाए, जैसे किसी के फ्लेम्स आ जाए, जो ब्लैकनिंग आ जाए, तो जो डिको एक्सपर्ट्स इसको लिखते हैं कि ये फायर करीब से लगा है। अगर मेटालिक डस्ट नहीं आता तो फिर 6-7 ये 3 फुट से शुरू हो जाती है ब्लैकनिंग करीब से फायर लगने की वजह से आती है। मैंने शक कर लिया उसके ऊपर कि ये तो बहुत डिप्लोरेबल सिचुएशन है, क्रिटिकल है, कि मैंने कहा कि आप भी आ जाएं, सुबह आप जरूर आना। फरहान को कहा कि आप जरूर आ जो कॉलर जिस मतलब मौके पर मौजूद था, तो फिर वो नहीं आया। अच्छा, मैं खुद लेकर आया हूँ। जब अभी थाने में उसको लेकर आया हूँ तो ठीक 1 घंटे के बाद बेलफ बादालत जनाब साहिब हौजा है अदल से, साहिब मुआदलत से, स्टूडेंट ऑफ द लॉ जस्टिस ऑफ लॉ गिवर से, कैनन ऑफ क्यूटी थिंकर ने एक बेलफ भेज दिया, जो कि हमारी लीगल फॉर्मेलिटीज के मुताबिक उसमें रोजनामचा में तकदीम व तखीर लगाई 3 रपट मौजूद थी, तो उसकी गिरफ्तारी डाली हुई थी। तो वो बेलफ जो था वो उसकी तो नाकाम हो गया। जब हमने प्रोड्यूस किया बिफोर द साहिब हौजा है अदल, जब पेश किया है तो रिमांड ले लिया 3 दिन। उनकी जो अपील थी, जो उनकी रिक्वेस्ट थी, वो खारिज होगी। उन्होंने कहा मतलब मुलजिम ने, आप कहते हैं कि वो चालाकी की और उसने जो है वो अदालत से या बेलफ मंगवा लिया। उसके भाई जमशेद वल मोहम्मद अशरफ, कौम जट सकना, जाम के डीसा, तहसील पसरूर, थाना किला कालर वाला ने कहा कि ये तो डिस्क्लोज हो जाएगी, पर्दाफाश हो जाएगा, क्यों ना हो कि इसको कंसील मैनर में फटाफट पुलिस को समझ ना आने दी जाए, टू बी नॉट टू बी डायनामिक अंदाज में इसको फिल फॉर एक्सक्यूट खत्म किया जाए किसी को। उसने बेलफ डलवा दिया। ठीक है, बेलफ आ गया, बेलफ नाकाम हो अभी फरहान आ गया हुआ था आपके पास की हमने गिरफ्तारी डाली हुई थी। अच्छा, पहले ही डाली हुई थी और बेलफ आ गया। फिर आपने बेलफ को क्या कहा? बेलफ कहा कि हमने इसको इस केस में अरेस्ट किया है, हम विद नो टाइम वी विल प्रोड्यूस बिफोर द कोर्ट्स लर्न। हम पेश किया, रिमांड ले लिया। जब रिमांड ले रहे थे उसके सोलिसिटर बैरिस्टर वकील ने कहा कि इसको पुलिस ने तशद्दुद किया है। हालांकि हमने तशद्दुद नहीं किया, हमने 1 घंटा पहले पकड़ाया और 6-7 दिन पहले की, या हो सकता है उसी दिन की खराशी हो, साइज वुंड हो, खराशी हो, तो उनका जिक्र भी हमने जिम्न नंबर 1 में किया हुआ है, या जिम्न नंबर 3 में, दोनों में किया हुआ है कि वो खराशें थी उस वक्त जब ये डकैती के दौरान मर्डर होता है। अजान और फरहान का क्या ताल्लुक है? पहले तो ये क्लियर करें थोड़ा सा। बचपन के दोस्त थे। अच्छा। तो जब मैंने टेक्निकली साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के ऊपर गया हूँ, CDR के ऊपर गया हूँ, लैक बेक के ऊपर गया हूँ, तो उसमें जो फरहान की बाबी है, जमशेद जो मरकजी मुल्ज़िम है, उसकी बीवी जो है, उसके साथ ये मकतूल अजान अली की काले मिलती हैं। अगर गुजरावाले में है तो उसकी लोकेशन भी सेम आई है, CDR की अच्छा। तो मैं समझता हूँ कि ये राब्ता है, ये इस सिलसिले में भी है, कड़ी है कि ये पहले इस सिलसिले में कड़ी है कि ये मार सकते हैं। और जमशेद वैसे भी रिकॉर्ड याफ्ता है, 2012 में भी इसने ऐसे कत्ल किया जिसमें ये सजाए मौत हुआ था। अच्छा, जमशेद तो फिर छूट के भी आ गया इसको, नहीं फिर रूपोश हो गया। हाँ जी।
अच्छा, उसके बाद से मतलब 2012 में जो कत्ल किया है उसमें भी गिरफ्तार नहीं, उसमें सजाए मौत हुआ, फिर सुलह की बेस के ऊपर ये बाहर आ गया। ठीक है, और अब ये अजान का कत्ल हो जाता है। वो भी औरत ही का मसला ये था। एक ही गांव में रहने वाले हैं? एक ही गांव में रहने। अच्छा, पहले क्या मसला था औरत का? पहले औरत के घर में दाखिल होकर ऐसी सिलसिला था 2012 का, शहनाज नामी औरत के घर में दाखिल होकर इश्क शुक्की प्यार का मामला था, जमशेद का, और उसने उसका भाई मार दिया। वो मना करता होगा कि आप ऐसी फिरकल वल्गर और फ्यूटल इंटाइस हरकतें ना करें, लेकिन अब जमशेद की वाइफ का मसला आप बता रहे हैं। और तो वो दोनों जमशेद बजाय शामिल तफ्तीश होने के, अपनी मवाजीन नमीन देने के बजाय इंडेक्टोमेथोलॉजी देने के, वो अब रूपोश हो चुका है, गांव छोड़ चुका है। तो ये लम्हा फिक्री है कि अगर आपके ऊपर वैसे इल्ज़ाम है, मुस्तदरिकात हैं, मुसामहात हैं, एलिगेशंस हैं, तो आप सामने आए। नहीं, ये तो हुआ कत्ल का मुकदमा दर्ज, आपको शक गुजरा फरहान पर, वो किस बुनियाद पर शक गुजरा और कैसे फिर तफ्तीश की? एक तो ये बॉडी जो है, ये डॉक्टर के पास जब था तो चादर इसको खून लगा हुआ था, जमशेद की चादर को। दूसरा जो फरहान था वो आंखों से आंखें नहीं मिला रहा था, और उसकी पोजीशन ऐसी थी जैसे आइस पी हो, नशे टैब, उसकी आंखें बंद हो रही थी। अच्छा। दूसरा जो कह रहे हैं कि 3 बंदे लुट गए, ना वो 15 पर कॉल थी, मैंने कॉल बुक और पूरे सियालकोट से चेक की तो ना कोई कॉल 15 पर थी लुटने वालों की, ना इनकी को कॉल है। ना बड़ा इंसिडेंट हो गया कत्ल का, ब्लाइंड मर्डर का, ना इनकी कॉल है, ना पहले लुटने वालों की कॉल है, ना वो थाने आए हैं, ना इनकी कॉल है। ये जब जमशेद को कहा कि ये तो चादर इसके बेटे की, और इसको आप तो मौका पर थे ही नहीं, आपकी चादर आपने कैसे ले ली? तो जब फिर मैंने मौका को हिरासत में नहीं लिया, जमशेद भाग गया। उसी वक्त आप शनाख्त, अगर तक्सा सूरत हाल की बात करें तो ये शनाख्त था, ही वाज द आइडेंटिफायर ऑफ द डेड बॉडी। ठीक है, अब जब आपने फरहान को हिरासत में लेकर तफ्तीश की तो वो क्या कहता है, उसका मौक़िफ़ क्या था? दौरान तफ्तीश उसने कोई इंकशाफ किया? हाँ, फरहान ने, जब मैंने उसका फिजिकल रिमांड लिया तो मैंने क्राइम सीन से मिल के साथ जो शैलर है उससे वीडियो ली, तो उस वीडियो में ये इसको लेकर आए हैं पीछे मारकर, और पीछे उतरा है बंदा, पीछे से उतरा है बंदा, वो भाग गया, वो जमशेद है। क्या वीडियो क्या थी? वीडियो में ये है कि स्कूटर पर 3 बंदे आए। कौन कौन? फरहान, मकतूल अजान अली और जमशेद अली। सेंटर में बैठा हुआ था अजान, चला कौन रहा था? चला रहा था फरहान। अच्छा। मकतूल था अजान अली सेंटर में। अच्छा। पीछे था जमशेद। ये आपने फुटेज देखी है? फुटेज देखी मौजूद है आपके पास? सीसीटीवी कैन बी डन, आई कैन प्रोड्यूस दैट सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। ठीक है, ये आपके पास मौजूद है। ये कहाँ पे जा रहे हैं? कत्ल की वारदात से कितनी देर पहले? नहीं, उसी दिन कत्ल की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ, पीछे मार के आए, अब तफ्तीश में सामने आ रही है, तो उनको नहीं पता था कि इधर कैमरा है, उधर कैमरे में आ गए हैं। जमशेद भी आ गया है, फरहान भी आ गया, और मकतूल को बिठा के लेके जा रहे हैं। जमशेद ने मास्क पहना हुआ है, विजुअल आइडेंटिफिकेशन हो सकती है, उसको कहते हैं कि सामने है, वो सामने नहीं आ रहा, रूपोश है, वो भाग गया है। आपने मुकदमे में नामजद कर दिया है, मदई ने उसको सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट में नामजद किया है, और जो उसने, जब उसको कहते हैं कि आए मुख्तलिफ तरीके से, तो उसने ही हैज अडॉप्ट रिबेलियस एटीट्यूड, बागियाना रवैया है, वो शामिल तफ्तीश नहीं हो रहा। सही, वो तो मुल्ज़मान अक्सर औकात कत्ल की वारदात के बाद फरार हो जाते हैं, ये रूटीन का। फरहान का 13 दिन रिमांड भी लिया है, इस इतना फरहान ने कोई दौरान तफ्तीश इंकशाफ नहीं किया, कोई बात नहीं की, वो क्या कहता रहा है? वो कहता है कि ये मुझसे गलती हो गई है, मुझे नहीं पता कि तीसरा बंदा कौन है। पहले जब उसको पता कि वीडियो मानता है उसने कत्ल, पहले उसने 2 किस्म की स्टेटमेंटें दी। एक स्टेटमेंट ये थी कि हम 2 थे बाइक के ऊपर, मरने वाला और मैं चलाने वाला। जब वीडियो सामने आ गई, अदील नामी शख्स ने वीडियो लेकर दी, तो उसने कहा तीसरा अदील था। अदील के जमशेद? अदील था इसलिए कि उसने सैलर पर काम करता था, पल्लेदारी का, उनका एजेंट टाइप होता है पल्लेदार, कोई तो काम करता था। उसने कहा ये आपने वीडियो लेकर दी था, आपका नाम लूंगा। जब उसका नाम लिया तो उसने कहा कि जब ये वकूआ हुआ है शाम से लेकर रात इशा तक, तो ये तो मदई के पास है अदील, और जो मदई के गवाहान है 2, वो पंप से तेल डलवा रहे थे। अच्छा। एक का नाम जुल्करनैन है, एक का नाम मोहम्मद असलम है। जमशेद नहीं था साथ सीसीटीवी फुटेज में? साथ था, साथ था। तो अदील कौन है? अदील का नाम वैसे ले लिया उसने कि ये है अदील, कि जब उसको पता चला कि इसने तो वीडियो लेकर, फरहान ने उसे फंसाने के लिए नाम ले दिया। लेकिन वो शामिल तफ्तीश किया, मदई ने, कंप्लेनेंट ने, मुअज्जिन ने, जितने भी नेटिविटी और जितने भी थे, उन्होंने कहा कि ये हमारे पास था। अच्छा, इस कत्ल के पीछे आप क्या वजूहात समझते हैं? इस कत्ल के पीछे एक तो गांव की
सियासी बैकग्राउंड, दूसरी ये है कि औरत का मामला, जमशेद की बीवी का और उसके साथ तल्लक, दूसरा जमशेद आती है इलाके में खौफ और आस फैलाने के लिए कि हम कत्ल कर देते हैं, ड्रामा रचाकर बनता कुछ नहीं है, इलाके में बलगर फ्यूटल बनकर फिरते हैं राउंडर, तो इसमें हमारी इज्जत बढ़ेगी। तो पहले भी कत्ल उन्होंने खत्म कर दिया, अब ये फिर कत्ल का ड्रामा रचाकर रूपोश है। ठीक है, फरहान को आप जेल भेज चुके हैं? फरहान को हमने जुडिशल इलाकों में बंद करके जेल भेज दिया, चलान बनाया हुआ है। ठीक अभी है, कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं चलान में। हमने अपने बुर्दी हाई अफ्स जो कि हमारे सरमाया हैं, जो कि अदल के बेताज बादशाह हैं, शेर पंजाब हैं, हसन इकबाल साहब DPO सियालकोट, उन्होंने मेरिट को तरजीह दी है। मेरिट के ऊपर जीरो टॉलरेंस है। उन्होंने कहा है कि मैं मेरिट के ऊपर गरीब की दाद रसी के लिए मुझे इंसाफ चाहिए, इदलु अक़रब तक़वा, अदल करना ही असल इंसाफ है। तो वो ऐसा कमांडर मैंने विदाउट एनी काइंड ऑफ एग्जैजरेशन और मैग्नीफाइंग DPO सियालकोट हसन इकबाल से बड़ा मैंने आज तक आदल नहीं देखा। सही है। इस मुकदमे में सिर्फ जमशेद जो है वो मफरूर है कि उसके अलावा भी? उसके अलावा अरशाद भी है। वो कौन है? अरशाद, जिसका जब गांव से फरहान को जब फरहान लेकर आता है मकतूल को, अजान अली को कि चाचे की गाड़ी खराब है, मुझे चाचे जमशेद भाई का फोन आया है, चाचे अरशाद की गाड़ी खराब है, आप साथ चलें, जमशेद निकाल की है। ना तो गाड़ी वाला सामने आया है, ना किसी वर्कशॉप में गाड़ी खराब है। अजान को लेके जाता है इस बहाने से? अजान मैकेनिक है? नहीं जी, अजान वैसे दोस्त है, अभी थोड़ी सी चूंकि अंधेरा छा गया है, रात की तरीकी है, खलवत जलवत, तो आप साथ चलें। गांव में रिवाज होता है कि आप साथ चलें, कोई बात नहीं, इकट्ठे वापस आ जाएंगे। ना तो गाड़ी वाला अरशाद सामने आया है, उसको नॉमिनेट किया हुआ है, ना 15 के ऊपर कॉल है, ना ही जमशेद सामने आ रहा है। और इलाके की जितनी इंडेक्टोमेथोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजिकल इल्म बशरियात के लिहाज से जो मुंह की सच्चाई है, वो कहते हैं कि ये लोग कत्ल कर गए और हड़प करना चाहते हैं और कत्ल में एम्बेजलमेंट कर रहे हैं हकायक के ऊपर, दलील कभी के ऊपर, असलीब मवाज़ीन के ऊपर और दलाइल एजाज की रोशनी में मेरी तफ्तीश में ये तीनों गुनहगार हैं। ये लेकिन दो सामने नहीं आ रहे। अच्छा, ये खातून के मामले पर एक तरह से उन्होंने कत्ल की वारदात की, तो ये भी है का, और CDR से ये सारी चीजें मैच होती हैं। बिल्कुल। और कत्ल की वारदात अब तक तफ्तीश में क्या सामने आया, किन दो लोगों ने, और फायर जो लगे हैं अजान को, वो किसने मारे? मेरी तफ्तीश में और दलील कभी की रोशनी में एक फायर जो है ना वो फरहान ने मारा है, दूसरा फायर जो है जमशेद ने मारा, दोनों ने मिलकर। लेकिन उसने ऐसा रबीलियस एटीट्यूड अडॉप्ट किया है कि डेलीविशन ये बोर्ड बिठा दिया लाहौर सियालकोट में तशद्दुद का, हम उधर जाते रहे, कभी पेलफ, कभी इतना टेंशन दिया है कि हम कुछ लॉ एंड ऑर्डर की, पीस एंड सिक्योरिटी की सिचुएशन ऐसी थी कि तफ्तीश में वो जानबूझ के हम तंग कर रहे हैं, उसने हमें कोई पल्ला नहीं पकड़ाया और मेरी तफ्तीश में गुनाहगार गया अल्लाह के फजल करम से। और यही हमारे DPO का स्लोगन, एम्स है, प्रिज्म एजेंडा मंशूर है कि कफन नहीं बेचना चाहिए, कफन के साथ वफा करें। और यही हलफ हमने दिया था स्याला में जब भर्ती हुई, PCS से रिक्रूटमेंट हुई है और उसी की कंप्लाइंस कर रहे हैं हमारे DPO साहब भी, यही कह रहे हैं कि कफन वाला जिसका मर जाए उसको इंसाफ दे, मजलूम की दाद रसी करनी चाहिए। मजलूम की दाद रसी ये बड़ा जरूरी है। इसी काम के लिए जो है वो पुलिस है और यही काम करने के लिए जीरो टॉलरेंस है हमारे DPO साहब। अच्छा, ये मुझे बताए राना साहब, अब जो दूसरा मुल्जिम है उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं अमल में लाई जा रही? आप क्योंकि होमिसाइड इंचार्ज है सर्कल पसरूर के, तो आप ही के पास ये तफ्तीश है कि तफ्तीश से तब्दील हो चुकी? नहीं, वो तो होती है डेलीब्रेशन बोर्ड में जाए तो तब्दील होती है, उसमें मुद्दई मुतमिन ना हो, कोई नुक्स रह जाए, नहीं तब्दील नहीं हुई, मुद्दई मेरे साथ मुतमिन है, आप उसका इंटरव्यू कर सकते हैं। तो मसला सिर्फ ये आ रहा है कि चलान के ऊपर और कुछ ऐसे इश्यूज आ रहे हैं। मैंने अपनी बुर्दी हाई साहबा ने तीनों मती आला DPO साहब को बताया हुआ है, कुछ चीज़ें कंसील बैनर में। उसकी गिरफ्तारी के लिए अब छापे मार रहे हैं कि नहीं जमशेद की, और उसकी गिरफ्तारी मैं अपने तौर पर कर रहा हूँ, चूँकि मेरे पास जितने वसाइल हैं, ये टीमें होती हैं, SHO ने पकड़ना होता है, हल्का फीसद ने टीम देनी होती है, वो पकड़ें, तो उनसे आप पूछें क्यों नहीं गिरफ्तार कर रहे? सही, जमशेद और इरशाद को शामिल तफ्तीश क्यों नहीं कर रहे? अगर वो बेगुनाह है तो सामने आए, 160, 175, 25(2) पुलिस रूल के तहत आमना सामना हो, बिलमिशाफा गुफ्तगू की जाए। नहीं, जो फरारी हो गया वो कहाँ पे बेगुनाह होगा? अगर बेगुनाह होते हैं तो वो सबूत दिया जाता है ना सामने। बेटा फौत हुआ है, गाँव में नहीं है, छोटा सा बच्चा दफन करके भाग गया, अगर उसके दिल में गिल्टी नहीं है, उसके फिर से ज़मीर बेने से दूर में ईमानदारी है, प्यूरिफिकेशन है, तो उसको आना चाहिए। और यही हमारे DPO साहब सियालकोट हसन इकबाल साहब का मेरिट ही उनका एजेंडा मंशूर है। सही, वो आप बता चुके हैं और ये काम भी है पुलिस का और बड़े अच्छे तरीके से वो अपना काम कर रहे हैं और ऐसे ही तमाम पुलिस को काम करना चाहिए। इस केस को किस तरह से देखते हैं? आगे इन मुल्ज़मान को करार वाक़ई सज़ा दिलवाने के लिए क्या मज़ीद करना होगा और आप क्या कर रहे हैं? मैंने गवाहान 160 की 161 और जितनी मेरे पास शहादतें हैं इलाके से,
15 अगस्त मौज़ीन की शहादतें इकट्ठी की हुई हैं, सबका रिकॉर्ड इकट्ठा किया हुआ है मुलज़म का, उनकी रूपोशी, रेबेलियस एटीट्यूड्स, 15 का डाटा कि एक कॉल भी नहीं है शाम से लेकर रात 11 बजे तक। वारदात 5 बंदे लुट गए, एक ने कॉल भी नहीं की, थाने में भी नहीं आया, मंजर आम पर बंदा नहीं आया। तो इन दलीलें कभी दलाल एजाज की रोशनी में, मवाज़ीन बराहीन की रोशनी में मैंने इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि ये गुनाहगार है, और उसका सेंस परसेप्शन, मेरा दिल करता है उसका पीजी कराता, पॉलीग्राफ टेस्ट कराता पीएफएसए से, उसकी रोशनी में भी। अच्छा, वो जो आपके सामने इतराफ़े जुर्म करता है, वो कितना इतराफ़े जुर्म कर रहा है? वो जो आपने पहले भी बताया, थोड़ा वो इतराफ़े जुर्म ये करता है कि मुझे नहीं पता कि तीसरा बंदा कौन है। सिर्फ ये बात करता है, ये नहीं कहता उसने मारा या नहीं मारा? ये करता ही नहीं। उसने तो तरह तरह से रुकावटें डाली हुई हैं तफ्तीश में, पूरी तफ्तीश होने नहीं दी उसने। नहीं तो फिर भी आपने रिमांड ले लिया। मैंने रिमांड 13 दिनों में जितनी शहादतें थी मैंने उनको गिल्टी किया है, गुनाहगार किया है। चंद इलाकाई मसाइल आ रहे थे तो मैं कैमरे की रोशनी में बतौर तईदी शहादत के तौर पर उसको कंसील्ड मैनर में अपने वुर्दी लेजेंड डीपीओ साहब को इन्फॉर्म कर चुका हूँ। उन्होंने हुक्म दिया है कि चलान इसको कंपाइल करें, इनकम्प्लीट चलान शुड बी सेंट टू इन प्रोसिक्यूशंस और अदर कल्प्रिट्स रॉन्गडर क्रिमिनल शुड बी अरेस्टेड। होमिसाइड जो इन्वेस्टिगेशन ही करने के लिए होती है, गिरफ्तारियों के लिए छापे भी मारती है। छापे अगर मदई कहे कि साथ है, करीब है, तो जाना चाहिए, क्योंकि इनके अपनी इतनी पार्सल्स, डाकर्स, इनके अपने मिसल्स के, इनके अपने इतने मसाइल्स हैं कि अपने ये लीगल फॉर्मेलिटीज़ और अमूर दस्तूरात की एक्सिक्यूशन फुलफिलमेंट कर ले तो मैं समझता हूँ बहुत पाकिस्तान में कम वसाइल की वजह से ये अपना चलान मरतब कर लें, शहादतें इकट्ठी कर लें। डॉक्टर जो जितने भी डॉक्टर साहबान हैं CMO सरूर के हैं, वो इनके पैथोलॉजी के, हेस्टो के, या जितने DNA डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड के जो डब्बे बनाते हैं, जितने पार्सल हैं, उनकी तरसील के लिए जितने डॉक्टर्स बनाते हैं उनको 22 दिन रखते हैं। हमारी ख्वाहिश होती है कि DNA और पार्सल शुड बी रीच टू द PFS and in their disposal should be within stipulated period of 72 hours। इसमें आइयो बहुत एफर्ट्स। आपने अभी तक कोई ऐसे शवाहिद जो है वो मैच हुए हैं कि जिसमें मकतूल का कत्ल हुआ है, उसके जो जाए वकूआ से चीज़ें मिली हैं कि उसके कोई टेस्ट करवाए हो जिससे मुलजिम के हवाले से उसके शवाहिद मिलते हों, कोई ऐसी रिपोर्ट्स भी सामने? हाँ, मैंने फ्रॉम द क्राइम सीन आई हैव कलेक्टेड मिट्टी, खून लूट इकट्ठी की हुई है, 2 बुलेट्स। एक वीडियो एविडेंस तो है आपके पास? एक है। सेकंड सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, द बुलेट्स, एम्प्टी बुलेट्स I have taken as a circumstantial evidence 2 bullets. I have sent to them towards PFSA। लेकिन आला कत्ल तो नहीं बरामद करवा सके ना? बरामद नहीं हुआ। अच्छा, let's see when I will capture other truths, तो then इंशाल्लाह फाइनल हतमियत और कतियत दामियत के साथ इन्वेस्टिगेशन जो है एक्सिक्यूट की जाएगी। ठीक है। और मकतूल के अहले खाना का क्या बयान है? वो कह रहे हैं कि we are not satisfied on the efforts of police. What are the problem? I'm sure that you will establish exclusive sitting with the plaintiff and complainant Saghir Ahmed. Definitely there will be conceptual clarity what they are saying about the police. If I will say that police is doing well, that is not admissible. That has no individuality in the eyes of camera. I think I ponder and meditate that you should establish exclusive sitting with the plaintiff कि क्या problem उनको आ रहे हैं, क्या issues हैं। तो वो अगर सेटिस्फाइड नहीं है तो वो आप पुलिस से नहीं है तो आप भी पुलिस में। बंदे जो जमशेद और शाद रहते हैं, why police is not going to arrest them? Why their challan is not going to be submitted in the court? Why? और चलान किसने जमा करवाना होता है? चलान मैंने जमा कराना होता है। तो करवाया नहीं आपने? Under section 173 SH is bound deliberately, randomly he should give you his signatures. He is not। वो नहीं सिग्नेचर नहीं कर रहे, उसको प्रॉब्लम आ रही है तो मैंने अपने वुर्दी DPO साहब को बताया हुआ है क्यों नहीं करते, उसको करनी चाहिए। अगर वो कहता है कि वो बेगना है, if she is not doing well, the deliberation board should be established। हमारे वुर्दी SSP इन्वेस्टिगेशन डेट एंड नेक्स्ट टाइम वो चेक करें। अगर वो कहते हैं कि जमशेद और शाद को जानबूझकर आईयू ने नॉमिनेट किया तो उनको सामने लेकर आए। सही है। ऐसा तहरीरी तौर पर SHO नहीं कर रहे, तहरीरी तौर पर नहीं कर रहे, तो वैसे कर भी नहीं रहे। हमारे तुली करना भी नहीं चाहिए। तो मदई की बयानी है, तुली ऐसे जैसे मोटिवेशन, मदई कह रहा है कि हमारा काम नहीं हो रहा। मैं तो हक बात करता हूँ, वक़ूल क़ौलन सदीदा, और हम कफन नहीं बेचना चाहिए। कत्ल केसों में 99.9 आयु जितना मर्जी बुरा हो, बैड रिप्यूटेड हो, उसको चाहिए कि मेरिट करे, मेरिट करना चाहिए। अदल फाहकुम बैन अन्नास,
अदल करना ही इंसानियत है। बिल्कुल ऐसे ही इंसानियत और काम है और बड़े अच्छे एहसन तरीके से आप कर रहे हैं। इन मुल्ज़मान का आप क्या समझते हैं, इन्हें करार वाक़या सज़ा दिलवाएंगे? मैंने अपने तौर पर इनकी सीढ़ियाँ ली, एक क्या आ रही है मियाँ वाली बंगला, एक की 17। When I have mentioned, so these two culprits has been changed, shifted from that place. It means there is something wrong. I will intimate to my worthy legend DPO within 2 or 3 days. What is going to happen in these areas? कितने अरसा बीत चुका है अब इस वाक़े को? Today, 2 months has been completed. Yet 2 culprits are still absconders. 2 माह 2 दिन हो गए, 2 माह पूरे आज हो गए, आज हो गए। मुलजिम पकड़े नहीं जा रहे, एक पकड़ा है। तो इस इलाके में मैं मेरी सिचुएशन मैं बड़ा पाउंडर कर रहा हूँ, मैं ठेठ कर रहा हूँ कि हमारे डीपीओ साहब इतनी मेहनत करें तो नीचे ये खुद ना करें अमल। तो मैं समझता हूँ नहीं, वो उस पर नोटिस ले सकते हैं, एसएचओ को तब्दील कर सकते हैं, वो डीपीओ है, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर, वो टीमें बनाते हैं, लीड उन्होंने दी हुई है, जितने उनके पास वसाइल है मुमकिन हमारे हर 8 दिन बाद मीटिंग करते हैं। आप आगाह कर चुके उन्हें, फिर भी गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई जा रही, ये भी तो लम्हा है। अगर वो बेगना है they should come forward, give their evidence. If they are innocent, we will give our opinions, we will give our doctrines they are innocent. If they are adopting rebellious attitudes, so then I thought they will be PO. Within after 3 months, they will be declared PO, proclaimed offenders from the courts. नाज़रीन, आपने सुना कि किस तरह से पुलिस इस केस की कर रही है। मकतूल अजान को बेदर्दी के साथ जो कत्ल किया गया, उसके पीछे ये अंधे कत्ल की वारदात थी, किस तरह से ट्रेस की गई, और अब जो पुलिस ही है वही इसमें रुकावट भी बनी हुई है। जैसा कि राना शबीर साहब ने बताया कि जो एसएचओ मुकामी और डीएसपी साहिबान, उनके सिग्नेचर और दूसरी कानूनी कार्रवाइयाँ होनी ज़रूरी होती हैं, लेकिन अभी तक नहीं हो सकी। और 2 माह से जमशेद जो इस मुकदमे में मुद्दई मुकदमा की जानिब से नामजद किया गया है वो भी मफरूर है। इरशाद की भी गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई गई। फरहान को अलबत्ता गिरफ्तार करके जुडिशल कर दिया गया, उससे भी रिकवरी नहीं हो सकी। अभी इस केस में काफ़ी पेचीदगियाँ हैं और इससे क्लियर होना बाकी है, लेकिन जिस हद तक इन्होंने केस को क्लियर किया उसमें सीसीटीवी फुटेज इनके पास एविडेंस है और तमाम शवाहिद जो हैं वो मज़ीद इन्होंने फ्रांसिक साइंस लेबॉर्ट्री और इधर भिजवा रखे हैं, जिसकी रिपोर्ट्स अभी आना बाकी है। और इनका कहना है कि उन मुल्ज़मान को इनकी रिपोर्ट के मुताबिक गुनाहगार किया गया है और बताया जा रहा है कि ये कोई ताल्लुकात, खातून के साथ ताल्लुकात की वजह से ये कत्ल की वारदात हुई है। असल हकाइक है क्या, मज़ीद भी हम आपको इस प्रोग्राम में बताते हैं। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मुकामी सहाफ़ी सजाद अली साहब मौजूद हैं, उनकी ज़ुबानी जान लेते हैं वो इस कत्ल केस पर क्या कहेंगे। क्या पुलिस इस केस में ठीक से तफ्तीश कर रही है या नहीं कर रही, कि मुबैना तौर पर मुल्ज़मान से इन्होंने साजबाज कर रखी है, इनका मौक़िफ़ है क्या, इन्होंने इस केस पर कैसे रिपोर्टिंग की, इन्हीं की ज़ुबानी आपको सुनाते हैं। बहुत शुक्रिया सजाद साहब, आपने वक्त दिया। सजाद साहब, ये क्या केस है? अभी तक जो समझ में आ सकी है बात कि एक नौजवान को कत्ल कर दिया गया और डकैती मज़ामत का ड्रामा रचाया गया, डकैती और कत्ल का मुकदमा भी दर्ज हो गया और पुलिस ने तफ्तीश की। एक तरफ तो ये कहते हैं पुलिस ने सही से काम नहीं किया, लेकिन फिर भी एक मुल्ज़िम गिरफ़्तार हो गया और बाकी मुल्ज़मान फ़रार हैं। अब बाकी मुल्ज़मान को ना पुलिस गिरफ़्तार कर रही है, ना इनके चलान पर साइन किए जा रहे हैं। असल हकाइक है क्या? बहुत शुक्रिया सलमान साहब। असल बात यह है कि पुलिस को चाहिए कि मुद्दई मुकदमा को देखे, जिनका बेटा, जवान बेटा कत्ल कर दिया गया है। इनको तहफ़्फ़ुज़ात ये है कि जो पुलिस है थाना किला कालरवाला की, वहाँ के जो एसएचओ साहब हैं वो इस केस को मेरिट पे नहीं ले रहे। अच्छा, वो साफ वो कहते हैं, मुद्दई मुकदमा से मेरी बात हुई थी, उन्होंने साफ कहा है कि एसएचओ साजबाज है इस केस में मुल्ज़मान के साथ, और जितने भी इनके पास एविडेंस है, वीडियो एविडेंस है और मकामी लोगों ने जो देखा है, जो मतलब लोग बताते हैं, ठीक है, उसके मुताबिक जो जिन लोगों को ये इस केस से निकालना चाहते हैं ना, वो असल मुल्ज़म ही वही हैं। ये अजान जो इनका बेटा था, ये काफ़ी अरसा से बाहर था, पैसे कमाता था और अपनी फैमिली को तो ये पैसे भेजता ही नहीं था। कभी कभार अगर उसकी वालदा ने बड़ा रो दो के या वालद ने कोई मजबूरी सुनाई है तो उसने घर पैसे भेजे, ये तो सारे पैसे इन दोस्तों को भेजता था। ये इसके साथ मिल के जितनी उसकी इनकम थी ये सारी खर्च करते थे। अच्छा। अब इसका एंड सीन क्या हुआ है कि उसको अपनी जान की बाजी हारनी पड़ी। जब अपने दोस्तों से पैसों का मुतालबा किया तो इसमें वीडियो में साफ देखा जा सकता है, ये उसको जिस तरह लेके गया, जाकर उस पर तशद्दुद किया है और उसको गोलियां मारी है, गोलियां मार के उसको कत्ल कर दिया है।
इस केस में हमने जो चीज़ें देखी हैं, इसमें है राना शबीर साहब जो आईओ हैं इस केस के, सही, वो इस पे काफ़ी हद तक मेरिट पे तफ्तीश कर रहे हैं, लेकिन जो मकामी पुलिस है ना सर, वो इस पे मैं तो यही कहूँगा कि उनको भी मेरिट पे काम करना चाहिए, क्योंकि क्या आईओ के हाथ में नहीं सब कुछ होता? वही सारा चलान भी उसी ने जमा करवाना होता है सर। कुछ चीज़ें जो मिसल की हद तक होते हैं ना सर, वो तो आईओ नहीं करना है, ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकली गिरफ्तारियां जो होती हैं वो एसएचओ के मुतल्लिका मामलात होते हैं। अब एसएचओ किसी को गिरफ्तार ही नहीं करेगा तो वहाँ पर आईओ क्या करेगा, क्या लिखेगा उसके बारे में? आईओ की तफ्तीश तो शुरू होगी जब मुलजम गिरफ्तार होंगे। एसएचओ अपना मौकफ क्या देता है? सर एसएचओ ये कहता है कि ये मुलजम नहीं है और हम असल मुलजमान को पकड़ेंगे और इंशाल्लाह उनको हम करारवा के सज़ा भी दिलवाएंगे। लेकिन मेन चीज़ सलमान भाई ये है कि जो मदई मुकदमा है, वो कहते हैं वीडियो भी देख ली है, उसमें वो ना सिर्फ फरहान है बल्कि जमशेद भी उसमें दिखाई दे रहा है। डेफिनेटली हाँ। जमशेद भी उसमें है, लेकिन जमशेद को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया। जब देखे पहले दिन जिस दिन मर्डर हुआ है, ये मुलजम सारे थाना में गए थे, उस दिन से ही ये कह रहे हैं कि ये हमारे मुलजम है। पुलिस ने उनको कैसे रिलीज कर दिया? अगर वो बेगुनाह होता तो वो थाने गए थे तो दोबारा थाने जाके गिरफ्तारी दोबारा दे थाने देते। जाते, बिल्कुल ऐसे ही हाँ। है, लेकिन उन्होंने अपना घर बार छोड़ दिया, गांव छोड़ दिया, यहाँ से वो फरार हो गया। ये सबसे बड़ा एविडेंस है उनकी गुनाहगारी का। भाई वो अगर मुजरम नहीं है तो उनको क्या ज़रूरत थी यहाँ से कूच करने की? वो क्यों यहाँ से चले गए हैं? तो डीपीओ भी बड़े यहाँ पे बताया जाता है बड़े अच्छे ऑफिसर हैं और दर्द दिल भी रखते हैं। डीपीओ हसन साहब जो है, क्राइम कोई भी क्राइम है उस पर वो कंप्रोमाइज़ नहीं करते। इवन दैट्स के वो अपने ऑफिसर्स को भी जो है ना स्पेयर नहीं करते। वो ये कहते हैं कि जिसने जुर्म किया है, जिसने गुनाह किया है, उसको उसके मुताबिक सज़ा मिलनी चाहिए। तो उनके नोटिस में ये बात नहीं, एसएचओ कैसे एक डीपीओ के हुक्म के बावजूद ना साइन करे ना गिरफ्तारी करे, ये कैसे मुमकिन है? सर देखिए, राना शबीर साहब से आपने बात की है, उन्होंने भी जितने इस केस के रिलेटेड जो भी मामला थे सारे आपसे डिस्कस किए है। हम जो पसरूर के मीडिया पर्सन हैं, हम खुद भी इस पे पर्सनल एफर्ट कर रहे हैं। इंशाल्लाह हम इनको डीपीओ साहब के पास भी लेके जाएंगे और अगर हमें इनके साथ आईजी पंजाब के ऑफिस तक भी जाना पड़ा हम जाएंगे, ठीक है। लेकिन अभी तक ये सारा कुछ जितना भी मलबा है ये मकामी पुलिस पे जा रहा है। मकामी पुलिस के जो एसएचओ साहब हैं उनको चाहिए कि इनको फुल फॉर गिरफ्तार करे और इनको इन्वेस्टिगेट करे। अगर वो बेगुनाह है तो उनको छोड़ दे, अगर वो गुनहगार है तो उनका चलान करे, उनको सजा मिलनी चाहिए। नाजरीन, अजान अली कत्ल केस में अभी बहुत से अबहाम बाकी हैं। 2 मुल्जमान गिरफ्तार नहीं हो सके और जो मुल्जिम फरहान गिरफ्तार हुआ उसने ना ही एतराफ़े जुर्म किया और ना ही उसके कब्जा से आला कत्ल बरामद हुआ। ताहम जब तक तफ्तीश मुकम्मल नहीं हो जाती और मुल्जमान की गिरफ्तारी के बाद उनके इंकशाफात नहीं आ जाते, तब तक कोई भी राय कायम करना गलत होगा। लिहाजा फिर भी आप अपने दोस्तों, अजीज़ों, कारिब और तमाम लोगों से एहतियात कीजिए और अपनी ज़िंदगी सोच समझ के बसर कीजिए ताकि ऐसे भयानक नताइज से बचा जा सके। अपने इर्द गिर्द होने वाले जुर्म को फौरी 15 पर रिपोर्ट कीजिए। अपने मेज़बान सलमान कुरैशी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।